Hello students. So now we have to see the very important part of our topic that is called as polarization. So this polarization is very important. So almost every year there will be question based on this polarization in JEE or NEET or CET. Okay. So this is very important concept called as polarization. Polarization in case of light. Now to understand the concept of polarization, so polarization देखने से पहले there are few terms related to polarization जिसको हम पहले देख लेते हैं. So first we have called as non-polarized light, or we can say unpolarized light. Non-polarized light or unpolarized light. अब ये non-polarized light क्या होता है, unpolarized light क्या होता है? So generally we can say that कि suppose अगर कोई भी light है, ठीक है, जनरली यू नो कि लाइट एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था. बट सपोज अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी बार, ई बार, बी बार, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इज इन वर्टिकल प्लेन, एंड दिस इज वाइब्रेटिंग इन वर्टिकल प्लेन. Magnetic field is vibrating in horizontal plane like this, horizontal plane, okay. Then the light, that is our electromagnetic wave, will propagate along this line, third axis, okay. ऐसे कुछ याद है आपको? बताया था मैंने. This is E bar, direction of vibrations of electric field. This is B bar, and our light will propagate like this, okay. So that will be our direction of propagation of light like this. So now in this case generally light में क्या होता है? लाइट में when we study polarization का concept, so basically for electromagnetic wave we have formula called as speed of electromagnetic wave. We can write C or V, whatever you want. So speed of electromagnetic wave is given by E by B, where E is what? Electric field vector, magnitude of electric field vector, and B is magnitude of magnetic field vector. So from here we can write that is E is equal to C into B. That is electric field vector का magnitude is equal to speed of light times magnetic field vector. So what will happen? So suppose अगर हम क्या करते हैं, अगर हम B का वैल्यू 1 भी रखते हैं, 1, B को मैंने कितना रखा? 1, ओके, ठीक है. ऐसे रख के दिखाता हूँ मैं आपको. सपोज इफ दिस B, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, सो ये C इज व्हाट? C इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 power 8 meter per second. सो से एग्जांपल, इफ B इज व्हाट? 1, अगर मैं B को कितना लेता हूँ? 1 टेस्ला. B को कितना लिया? 1 टेस्ला. सो इन दैट केस दिस 1 टेस्ला विल गेट मल्टीप्लाइड विद 3 into 10 power 8, एंड वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 into 10 power 8 volt per meter, or we can write Newton per coulomb. तो ऐसा कुछ मिलेगा. So here what we observe कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू है वो 1 है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज वेरी हाई, इट इज 3 into 10 power 8. इन सेम वे अगर मैं इसको क्या कितना रखूँ यहाँ पे, दिस इज 3 into 10 power 8, 30 crores. अगर मैं यहाँ पे कितना रखता हूँ? 2, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो 30 करोड़ से मल्टीप्लाई होकर अपने कितना मिल जाएगा? 60 करोड़ वोल्ट पर मीटर. सो फ्रॉम हियर, सो इफ दिस इज 2, तो ये कितना आएगा अपना? दिस इज 6 into 10 power 8 वोल्ट पर मीटर. सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो E का वैल्यू है, सो E का वैल्यू इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू B. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू B. हेंस वी से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट is decided by electric field component only. ये भी एक एमसीक्यू है, आपको ऐसा एमसीक्यू मिलेगा, उसमें ऐसे पूछते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय ऑप्शन 1 electric field vector only, option B, second option that is magnetic field vector only,
ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो उसमें आंसर क्या रहेगा? सिंस आंसर क्या होगा उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओनली, सिंस E bar is very greater as compared to B bar, hence we say कि optical property of light is decided by electric field component only, ओके। एक बात ये समझ में आ गया? तो बेसिकली पोलराइजेशन में हम जनरली किसको स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो नाउ कमिंग टू अवर डेफिनेशन पे आते हैं कि एग्जैक्टली में है क्या, व्हाट इज नॉन पोलराइज्ड लाइट। सो बेसिकली हम क्या देखेंगे? लाइट का अगर स्टडी करना होगा पोलराइजेशन में तो बेसिकली वी कंसीडर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट मैग्नेटिक फील्ड, वी विल कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज नॉन पोलराइज्ड? सो द definition you note down, the definition is the light in which vibrations of electric field, अब मैं आगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा, है ना, क्यों हमने देखा कि क्यों ऐसा होता है। सो द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड are possible in all possible directions. Vibrations of electric field are possible in all possible directions, so we can say in multiple directions. So the light in which vibrations of electric field are possible in multiple planes are called the light in which vibrations of electric field are possible in multiple planes is called unpolarized light। ओके, सो एग्जांपल अगर ये बल्ब है, बल्ब से जो भी लाइट आ रहा है, तो नॉर्मली जो भी लाइट हमको दिखता है इन अवर डे टू डे लाइफ, लाइक लाइट कमिंग फ्रॉम सन, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। सपोज अगर बल्ब ग्लो होगा तो यहाँ से जो लाइट आएगा दैट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं सपोज मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, सो इफ आई एम यूजिंग मोबाइल का ये जो आपको लाइट दिखेगा, दिस फ्लैश लाइट, सो दिस फ्लैश लाइट इज व्हाट? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो बेसिकली जनरली व्हाटएवर लाइट वी सी इन अवर डे टू डे लाइफ दैट इज अवर अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, तो वो अनपोलराइज्ड लाइट होता है। अब इसका सिंबल क्या है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? लाइट कमिंग फ्रॉम सन, light coming from torch, tube light, bulb, so that will be our unpolarized. Okay, now इसका symbol क्या है? So how to represent unpolarized light? So the symbol of unpolarized light, इसके बहुत सारे symbol है, but generally we use like कि suppose अगर ये कोई point source है, this is point source, और ये point source से ये point source है, अगर ये light glow हुआ तो क्या करेगा? अभी हमने क्या बोला कि अनपोलराइज्ड में क्या होगा? लाइट विल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल वाइब्रेट इन मल्टीपल प्लेन्स, तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन विल बी लाइक दिस वर्टिकल प्लेन। तो ये ऐसे लाइन का मीनिंग क्या है? ऐसे वाइब्रेट होगा लाइक दिस। अगर मैं इसको ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ, इट मीन्स की वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मीन्स ये वाइब्रेशन ऐसा होगा, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज ऐसे ड्रॉ किया, सो लाइक दिस की ये लाइट का वाइब्रेशन ऐसा होगा। ओके, अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो इट मीन्स कि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसा होगा। लाइट मीन्स यहाँ में किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपना क्या है? पॉइंट सोर्स। सो लाइक दिस, सो दिस इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ व्हाट? रिप्रेजेंटिंग अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसा भी दिखाते हैं। इन सम केसेस कभी कभी आपको ऐसा भी डायग्राम मिलेगा, दिस इज लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो लाइट इज मूविंग लाइक दिस, तो लाइट इधर है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें मल्टीपल प्लेन्स में दिखाना है वाइब्रेशंस, तो मल्टीपल प्लेन्स में दिखाना है तो भी जनरली मल्टीपल मीन्स हम क्या करते हैं? दो प्लेन में दिखा देते हैं कि लाइट ये ऐसे दिखाने का मीनिंग क्या है? कि वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, और हमने क्या किया? एट द सेम टाइम इसको ऐसा भी दिखा दिया लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट? वाइब्रेशंस इन मीन्स थोड़ा 3D में है, तो वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल, तो बेसिकली सब प्लेन नहीं दिखा के हम दो प्लेन दिखा देते हैं। तो ये भी एक सिंबल है, सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, दैट इज नॉन पोलराइज्ड लाइट। और इन आवर बुक और मोस्ट ऑफ केसेस आपको ऐसा भी एक सिंबल मिलेगा कि लाइक एक दिखा देंगे वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, दिस इज वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के वाइब्रेशंस को भी रिप्रेजेंट विद डॉट।
तो ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। तो ये डॉट का मीनिंग ऐसा है कि अगर वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है तो यू विल सी व्हाट डॉट, तो ये वाइब्रेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ नॉन पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन मल्टीपल प्लेन्स। तो मल्टीपल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। एग्जांपल वी कैन से अवर सनलाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, सो दैट ऑल लाइट्स इन जनरल अवर डे टू डे लाइफ में जो भी लाइट देखते हैं वो अपना कैसा होता है? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, सो ये नोट कर लो। सो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, तो पहला अपना डेफिनेशन क्या था? अनपोलराइज्ड। फर्स्ट वन इज अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ सेकंड वी हैव कॉल्ड एज PPL. So second one is called as plain polarized light. Plain polarized light. So second one is what? PPL. It's not IPL. IPL नहीं है, क्या है? PPL है, PPL. Plain polarized light. Plain polarized light. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन वाइज, द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइट, नोट डाउन डेफिनेशन नोट कर लो, द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर confined or restricted, are confined or restricted, are confined or you can write restricted in a single plane, in a single plane। तो ऐसा लाइट जिसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को फोर्सफुली रेस्ट्रिक्ट करके, मतलब क्या कर रहे हैं? सिंगल प्लेन में रह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नॉर्मली कोई भी लाइट पीपीएल नहीं होता है, वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू restrict, we have to force to vibrate it into what? Single plane, and that will be our PPL. Okay, तो जनरली अपने को लाइट कोई PPL नहीं मिलता है, we have to convert। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आगे का अपना प्रोसेस आएगा। तो इसका सिंबल क्या है? How to represent this PPL, that is plane polarized light। So to represent PPL, what we can say कि यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा होगा? सिंगल प्लेन में होगा। So if vibrations are in vertical plane, so vibrations in vertical plane, तो अगर वाइब्रेशंस वर्टिकल प्लेन में होगा तो जनरली वी रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये लाइट है और ये लाइन, सो दिस लाइन, ओनली दिस लाइन, इसमें डॉट नहीं आएगा। तो दिस लाइन्स का मीनिंग क्या है कि हियर वाइब्रेशंस आर इन वर्टिकल प्लेन, बट वो सिंगल प्लेन नहीं है, सिंगल प्लेन में, तो वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन। सपोज अगर सेकंड इफ वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशंस होगा, सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। अब इसको जनरली हम क्या डिनोट करने वाले हैं? डॉट से। तो डॉट, सो लाइक दिस एंड दिस। तो इसका मीनिंग क्या है? वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस मींस वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, दिस इज वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए? वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेन में होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? अवर PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो दो आपको क्लियर हो गया, दो टाइप क्या क्या है? एक अपना है अनपोलराइज्ड लाइट, द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन मल्टीपल प्लेन्स, और सेकंड वाला क्या है अपना? PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ electric field will be in a single plane is called as what? Is called as PPL, that is plane polarized light। स्क्रीन पॉज करके इसको भी नोट कर लो फटाफट। ओके, नाउ नेक्स्ट सी द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? पोलराइजेशन। तो भाई अभी हमने अनपोलराइज्ड लाइट देख लिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट देख लिया, अब ये पोलराइजेशन क्या है? व्हाट इज पोलराइजेशन? सो पोलराइजेशन, कैन यू गेस कि पोलराइजेशन क्या है? So polarization is nothing but, इसका डेफिनेशन क्या आएगा? So it is nothing but क्या? हमने क्या क्या स्टडी किया?
So we have studied something called as क्या, पहले कौन सा लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट के लिए अपना सिंबल कैसा रहेगा, जनरली वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. जो थर्ड वाला सिंबल आपको मैंने बताया था, थर्ड सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. So this means vibrations in vertical plane and this means vibrations in horizontal plane. So this is which light, unpolarized light, unpolarized light. So this is unpolarized light. Okay, ये कौन सा लाइट है, ये unpolarized. और अभी हमने देखा क्या, PPL, that is plane polarized. तो plane polarized में क्या होगा, so in case of plane polarized light, vibrations will be in single plane. तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये लाइट को अगर सपोज इफ वी हैव सम क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल है, सपोज इफ वी हैव दिस बेंजीन क्रिस्टल, ऐसे अलग अलग क्रिस्टल होते हैं कि सपोज एक बेंजीन क्रिस्टल है, वी हैव डिफरेंट क्रिस्टल्स, कैल्साइट, कैलामाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज क्रिस्टल है और ये इसका क्रिस्टल क्या एक्सिस है. तो अगर ये एक्सिस से, और ये लाइट कैसा है, ये लाइट में वाइब्रेशंस, तो ये जो ब्लू वाला है इसका मीनिंग वाइब्रेशंस इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में है. ये डॉट का मीनिंग क्या है, वाइब्रेशंस इन, ये डॉट वाला अपना कैसा है, वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, तो हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी. और ये आगे हमने क्या रखा है, क्रिस्टल, बेंजीन क्रिस्टल. सो इफ दिस इज बेंजीन क्रिस्टल देन क्या होगा, लाइक दिस सिचुएशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे होल है और एक वर्टिकल वाला भी लाइट है, हॉरिजॉन्टल वाला भी. तो जब ये पास होगा तो क्या होगा, तो जो वर्टिकल प्लेन वाला है दैट लाइट विल गेट पास थ्रू दिस क्रिस्टल. तो ये बेंजीन क्रिस्टल से वो पास हो जाएगा. तो सच दैट यहाँ पे जो लाइट हमको मिलेगा तो उसमें कौन से प्लेन में वाइब्रेशन होगा, तो उसमें वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन होगा. हॉरिजॉन्टल वाला वाइब्रेशन, ये जो डॉट वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला वाइब्रेशन वो ब्लॉक हो जाएगा. तो सच दैट ये जो लाइट मिला, ये लाइट कौन सा मिला अपने को, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो ये कौन सा लाइट था, अनपोलराइज्ड. ये कौन सा लाइट है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड. So basically what is polarization? So polarization is nothing but the conversion of unpolarized light into plane polarized light is called as polarization. Okay, that is clear with the help of some crystal. तो ये जो concept है इसी को हम क्या बोलते हैं, polarization. Okay, so definition क्या है polarization का? Polarization is what? The process of conversion of unpolarized light. The process of conversion of unpolarized light into plane polarized light is called as polarization. तो जब ये लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, so we will get this light. Okay, तो ये अपने को लाइट मिलेगी. This is called as polarization. Now we have different techniques. That is polarization by reflection, polarization by scattering, polarization by different crystals. So that we will study in next module. Okay, thank you.